हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस सीरीज का थ्योरी पार्ट है, जिसमें हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, थोड़ा बेसिक जाना कि पीडीएफ क्या होता है एंड पीएमएफ क्या होता है। नाउ वी वांट एंड लास्ट में हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया था कि पीडीएफ जो है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है देन कंपेयर टू पीएमएफ, क्योंकि पीएमएफ जो है हर एक पॉइंट पे आपको वैल्यू देता है, प्रोबेबिलिटी देता है, बट देन पीएमएफ जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं देता है। इंस्टेड पीएमएफ एक फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करने पे हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है। तो ये दोनों बहुत ही अलग तरह के फंक्शन है। तो अगर हमें कंपैरिजन करना है कंटिन्यूस या कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में, तो हमारे पास एक यूनिक चीज नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो इसलिए एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिससे हम यूनिकली डिटरमिन कर सके चीजों को। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है? लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल, then CDF of x, CDF is short form of cumulative distribution function, is defined as fx. CDF of x is denoted by fx, and this function, this is a function from, let me write it over here, this is a function from r to r or 0 1, whatever you want to write, because the way we will define the values will be lying between 0 and 1. So it is the probability that x is taking values from minus infinity to small x. Fx at small x is defined as this. Now I hope you remember the difference between px and p. So we had original sample space as s, and then we are taking a function from here which is x, which is taking values in r. So now if we have probability measure p over here, then over here the corresponding probability measure will be px. So px. So px will compute the probabilities of subsets of R, where p will compute the probabilities of subsets of S, right? So here if it is px, then there is a subset of R over here. With p, it's a subset of S. And what it is saying is, this is same as px minus infinity to x, and the way we have defined px is this: p such all elements from S such that the function x takes values less than equal to small x. Okay, and this is shortened to probability x less than equal. This is just a notation, doesn't make sense. I mean to say that it should be something like this: probability x less than equal to x, or to be precise, it should be S belongs to S such that x of small s is less than equal to x. So this is just a notation for these two things. So that's why it doesn't really make sense to write us like this, but this is just a short form. So now why the range of fx is 0 1? Because it's we are computing probabilities of some sets. It cannot be less than 0, it cannot be more than 1. So the range of fx is always 0 to 1, close interval. Now we'll see an example of how this CDF looks. In case of discrete, let's say x is number of up face of a roll of a standard die. तो स्टैंडर्ड डाई में 1 to 6 फेसेस होते हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है 1 to 6 आने की? तो हमारा जो सैंपल स्पेस है क्या हो गया वो 1 to up to 6. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पर्टिकुलर आई फॉर आई बिलोंग्स टू डी? इट्स 1/6, क्योंकि स्टैंडर्ड डाई है तो ये फेयर डाई है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए एंड सबकी टोटल 1 होनी चाहिए, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6. नाउ fx ऑफ स्मॉल x when x is less than 1. So what it is asking is basically minus infinity to x, right? Close interval x.
इसका क्या मतलब है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसके लिए हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो वैल्यूज लेगा x के नीचे, मतलब स्मॉल x से छोटी वैल्यूज लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। स्मॉल x से लेस देन 1, और हमें पता है कि लेस देन 1 वैल्यू कभी आ ही नहीं सकती, तो स्मॉल x चाहे 0 हो, चाहे -1 हो, चाहे -1.6 हो, चाहे 0.5 हो, चाहे 0.99 हो, जब तक ये x स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, ये सेट हो जाएगा नल सेट, क्योंकि हमारे पास x की मिनिमम वैल्यू ही 1 है। तो ये सेट हो गया नल सेट, और नल सेट की प्रोबेबिलिटी तो हमें पता है वो होती है 0। सो दैट्स व्हाई this is equal to 0 if x is strictly less than 1. Now, if x is equal to 1, small x is equal to 1, then what is the probability? Probability capital X minus infinity to 1 close. इस पूरे इंटरवल में x कौन सी वैल्यू लेता है? सिर्फ 1 लेता है और कुछ भी नहीं लेता, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी x माइनस इंफिनिटी टू स्मॉल 1 ओपन इंटरवल प्लस प्रोबेबिलिटी x 1, and this is equal to 5 and this is equal to 1/6, right? Now if I say I keep something over here which is strictly less than 2, let's say 1.5, then what will be the probability? It will again be the same. Why? Because what I will do is now split this in interval. Now what I know is इस पूरे इंटरवल में सिर्फ एक ही वैल्यू है जो x लेता है, वो है 1। तो इस पूरे इंटरवल को मैं स्प्लिट कर दूंगी 3 पार्ट्स में, -infinity to 1, px of and 1 singleton 1, and then open 1 to 1.5 क्लोज। एंड यहाँ पे भी x कोई वैल्यू नहीं लेगा, इसलिए ये भी 5 हो जाएगा, तो px of 5 इज अगेन 0, एंड जस्ट यही वैल्यू हमारे पास बची है। इसी तरीके से अगर ये 1.999 भी हो गया तब भी हमारे पास फाइनल आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ही आएगा, विच इज सेम एज 1/6। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, what if this is something either 2 or greater than 2? So if we keep it 2, then we know there are two values which x can take, 1 and 2. So we'll add the probabilities of those two, so it will be 2/6, right? Now if I take something which is strictly greater than 2, which is greater than or equal to 2 and less than 3, then also I know that only values x can take in that interval -infinity to x, small x, is 1 and 2, and that's why the probability will be 2/6 again. Anything like 2/9, let's say, then also x will take only 1 and 2, and hence the probability is 2/6. And similarly you can see that at this point the probability will be 5/6. If small x is greater than equal to 6, then we know that x will always take values less than equal to this particular number, right? So if we want to compute -infinity to x, where x is greater than equal to 6, we know that all the values of x 1 2 3 4 5 6 are lying in this interval, hence the total probability will be 1. 1/6, 1/6, 1/6, and so on. So it will be 1. So the final answer is 1. I hope it is clear to you how we computed the probabilities. Now we'll see the graph of this fx. So we have all the values. For less than equal to 1, it will be 0. Okay. As soon as we reach 1, there's a jump of 1/6. So this is something like this, and now what does this mean? I hope you know the concept of continuity. तो अगर कोई फंक्शन है जो
एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है और ऐसे जंप लेता है, बट उसके पहले वाले सारे पॉइंट्स पे वही सेम वैल्यू है, तो यहाँ से आके यहाँ 1.99999 कुछ भी ले लो तब भी वो 0 ही रहेगा, बट जैसे ही 1 पे पहुंचे वो 1/6 हो गया। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ तक आया, फिर ये ओपन है, इसका मतलब कि 1 पे ये वैल्यू नहीं ले रहा है, फिर यहाँ पे एक डॉट लगाया है उसकी वजह से, मतलब 1 पे ये वैल्यू है इंस्टेड ऑफ दिस। नाउ अगेन सेम 1 से 2 के बीच में, मतलब 1.9999 भी ले लेंगे, ओ सॉरी हियर इट वाज 0.99, अगर यहाँ पे 1.99 भी ले लेंगे तब भी वैल्यू 1/6 ही रहेगी, बट जैसे ही 2 आ जाएगा वैल्यू हो जाएगी 2/6। हियर वी आर putting fx and here we have small x, so that's why this will be open and this will be again same 3 पे ये हो गया 5, ये ओपन, ये 5/6 पे क्लोज, एंड 6 होने के बाद में x जैसे ही 6 होता है वैल्यू चली जाती है 1 पे, 6/6 पे, फिर ये परमानेंटली 1 है। एनीथिंग विच इज ग्रेटर देन 6 it will always be 1, it cannot be more than 1, and yeah मैंने पीछे वाली लाइन नहीं बनाई है -∞ तक की, तो इस वाली लाइन पे भी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी, क्योंकि ये वाली कोई सी भी वैल्यू x अटेंड नहीं कर रहा है, सीधे 1 पे अटेंड करता है, इसलिए यहाँ पे जंप है, फिर 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं लेता है x, इसलिए ये बस एज इट इज सेम ही वैल्यू चल रही है। जैसे ही 2 आया यहाँ पे एक और जंप आया फंक्शन में, फिर सेम है क्योंकि 2 के बाद में 3 तक x जो है कोई और दूसरी वैल्यू नहीं लेता, फिर जैसे ही 3 आया तो जंप आया, 4 आया तो जंप, सिमिलरली तो ये हो गया एक स्टेप वाइज फंक्शन, स्टेप्स लग रहे हैं ना ऐसे टिंग 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 तो ये हो गया एक स्टेप वाइज फंक्शन। और एक चीज हमने देखी कि ये हमेशा इंक्रीज हो रहा है, राइट, डिक्रीज नहीं हो रहा, और वैल्यू 0 से 1 के बीच में ले रहा है। और हमने क्या नोटिस किया, ओके नेक्स्ट वाले में देखते हैं, इसमें वैसे देखना ज्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट एक कंटिन्यूअस का एग्जांपल है, अगर हम लेफ्ट से चल रहे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, राइट, बट अगर हम राइट से इधर आ रहे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है किसी भी पॉइंट पे, मतलब राइट कंटिन्यूटी तो है बट लेफ्ट कंटिन्यूटी नहीं है। राइट कंटिन्यूटी लेफ्ट कंटिन्यूटी क्या होता है कि अगर हमारे पास में लेट्स से एक सीक्वेंस है एक्स एन जो डिक्रीज हो रही है स्मॉल एक्स पे, ये देते हैं एक्स, ये है एक्स एन, तो अगर एक सीक्वेंस है जो एक्स की तरफ जा रही है फ्रॉम राइट साइड, मतलब एक्स एन बड़े हैं एक्स से, तो एफ एक्स एन भी एक्स एफ ऑफ एक्स की तरफ जाएगा, इसे कहते हैं हम राइट कंटिन्यूटी। एंड अगर well it doesn't matter it decreases or increases, it should go to like limit of I'll not say limit, but since it's an increasing function you can always say that it will go to this place, but otherwise हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि लिमिट x प्लस सॉरी लिमिट h गोइंग टू 0 f ऑफ x प्लस h, तो ये x प्लस h सारे xn हो गए, मतलब x h मान लो, और h गोइंग टू 0 है तो ये पूरी वैल्यू x पे जा रही है, तो इज इक्वल टू f ऑफ x, मतलब ये राइट कंटिन्यूटी हो गई। अगर हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं तो लेफ्ट कंटिन्यूटी हो जाएगी, या मान लो कि ये दूसरी सीक्वेंस है yn जो इंक्रीज कर रही है x की तरफ, जो इंक्रीज होते हुए x पे जा रही है, तो f ऑफ yn अगर अप्रोच करता है f ऑफ x को देन इट्स लेफ्ट कंटिन्यूअस।
मतलब अगर हम डायग्रामेटिकली अगर हम लेफ्ट से चल रहे हैं और ये पूरी सीक्वेंस जो है यहाँ से अगर आप लेंगे कि 1/n वाली जो 1 वाली जो सीक्वेंस है 1 - 1/n लेते हैं, तो ये 1 को अप्रोच कर रही है, बट f of 1 - 1/n is always 0, whereas f of 1 is 1/6. तो ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये लेफ्ट कंटिन्यूअस नहीं है, बट राइट कंटिन्यूअस है क्या? f of 1 + 1/n ले लो, तो f of 1 + 1/n पे वैल्यू है 1/6, एंड सिमिलरली जैसे जैसे 1 पे आ रहा है तब भी 1/6, ये सारे पॉइंट्स पे 1/6 है और f of 1 भी 1/6 है, तो इसलिए ये राइट कंटिन्यूअस है। और एक फंक्शन तब कंटिन्यूअस होता है जब वो लेफ्ट एंड राइट कंटिन्यूअस दोनों हो, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये दो अलग अलग लिमिट्स है, अगर दोनों साइड की लिमिट सेम है उस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू से तो लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। बट यहाँ पे सिर्फ एक साइड की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट साइड की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ओके, तो हमने 4 प्रॉपर्टीज देखी कि एक तो -∞ तक जाते जाते ये पूरा 0 है, और एंड +∞ पे जाएंगे तो 1 ही वैल्यू ले रहा है कंटिन्यू, और अगर लेफ्ट कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो नहीं है, बट राइट कंटिन्यूटी है एंड इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्टेप वाइज होना जरूरी नहीं है, ये हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल में। तो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, एग्जाम्पल है हमारे पास कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में लिया था कि x इज अ रैंडमली चूजन रियल नंबर फ्रॉम 0 to 1। तो प्रोबेबिलिटी तो f(x) किस तरीके से डिफाइन होगा? अच्छा, अगर स्मॉल x लेस देन 0 है तो यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 0, नो नॉट 0, मतलब 0 से छोटा कोई भी नंबर, तो लेट्स से -0.11, वेरी स्मॉल नंबर। बट x उसमें से वैल्यू लेगा क्या? नहीं लेगा, क्योंकि x x जो है बिलोंग करेगा क्या? -∞ टू -. और छोटा नंबर लेते हैं इसमें, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि x तो रियल नंबर है बिटवीन 0 एंड 1, इवन 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो अगर यहाँ पे 0 भी आ जाता है तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू 0 ही रहेगी, राइट? तो ये हो गया 0। अब अगर x जो है 0 से बड़ा और 1 से स्ट्रिक्टली लेस देन 1 कोई नंबर, तो ये बिलोंग करेगा? करेगा, डेफिनेटली करेगा। बट इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंगिंग इन दिस, this is same as, this is nothing but small s belongs to capital S, x of small s belonging -∞ to x, or you can write it as x of small s less than x, both are the same things। ठीक है, तो अब ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब हमने देखा था कि अगर 0 से हाफ में हमारी वैल्यू आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाफ। 0 से 1/4 में आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। 0 से लेट से 1/3 में आए तो सिमिलरली, क्योंकि इस इंटरवल की लेंथ जो है वो 1/3 है, इसलिए 1/3 होगी। बट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग हाफ पूछूं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1/4 पूछूं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1/6, ऑल दीज थिंग्स आर 0, क्योंकि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि लेंथ पे डिपेंड करता है कि क्या होगी प्रोबेबिलिटीज। तो अभी अगर हम इसको इस तरीके से लिखें कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू स्मॉल x will be same as probability of x less than equal to 0 plus probability x belonging to 0 to small x।
कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्योंकि सिंगलटन पॉइंट्स पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती तो जरूरी तो अगर कहीं भी इक्वल और ये लगा देते हैं, मतलब यहाँ से इक्वल हटा के यहाँ लगा दे, यहाँ पे क्लोज इंटरवल कर दे या यहाँ पे क्लोज हटा के ओपन कर दे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एनीवे वैल्यू 0 ही है, तो आप चाहे क्लोज लगाओ चाहे ओपन लगाओ, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी तो 0 हो गई क्योंकि 0 से नीचे हो नहीं सकता, एक्स वैल्यू ले नहीं सकता 0 से नीचे। और ये प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, क्योंकि इस इंटरवल की लेंथ x है। अभी x जो है स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, पॉइंट ये पॉइंट नोट करना, x जो है स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है। तो इसलिए अगर ये x होता 1.5 तो अगेन 0 से 1 एंड देन 1 से 1.5, तो 1 से 1.5 की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 0, और सिर्फ 0 से 1 की निकालते विच हैज टू बी 1, क्योंकि x सारी वैल्यूज 0 से 1 के बीच में ले रहा है। तो इसलिए अगर x लेस देन 1 है देन ओनली इट इज व्हाट, इट इज x, द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल विच इज x। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि ये 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, तो सीधा सीधा क्योंकि x की सारी वैल्यूज इसी इंटरवल में लाई कर जाएगी -∞ टू x में, एज सुन एज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 हो गई। ठीक है, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, x लेस देन 0 है तो ये 0 0 0 0 0 0 चल रहा है कंटिन्यू, जैसे ही 0 हुआ ये x हो गया। अब 0 पे कंटिन्यूस है क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू 0 ही है, तो एनी सीक्वेंस कमिंग फ्रॉम हियर विल बी 0, एनी सीक्वेंस फ्रॉम हियर विल ऑल्सो टेक लाइक x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू 0 ही है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया y इक्वल टू x साइन। यस, ओके, तो 0 से 1 के बीच में ये फंक्शन है x और फिर 1 के बाद में ये फंक्शन है 1, तो क्या देगा 1 के बाद में मतलब इन्फिनिटी पे जाते जाते प्रोबेबिलिटी f की वैल्यू हो गई 1, -∞ पे वैल्यू है 0 और बीच में कुछ भी वैल्यू है, बट ये कंटिन्यूस है, मतलब राइट कंटिन्यूस तो है ही, जो हमने प्रीवियस केस में देखा था कि राइट कंटिन्यूटी होल्ड करती है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, ओके, let x and y are two random variables such that they are equal in distribution. No, sorry. This is sort of a definition. If x and y are two random variables, then we say that they are equal in distribution if and only if this CDF of x is same as CDF of y at all points. If you are confusing it with capital X, then let's keep it something like t. Then it will be clear. At all points in real number line, it has to be equal for both x and y. Okay, so basically क्या हो गया कि अब हम कंपेयर कर सकते हैं किसी भी दो रैंडम वेरिएबल्स को। जो हम पहले कह रहे थे कि हम PMF और PDF को कंपेयर नहीं कर सकते, अब हमारे पास एक ऐसी चीज है जो CDF के लिए भी होल्ड करती है, PDF के लिए भी होल्ड करती है एंड PMF के लिए भी होल्ड करती है। तो नाउ वी हैव समथिंग जिससे हम दो रैंडम वेरिएबल्स को कंपेयर कर सके, नो मैटर वो डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, क्या है। ठीक है, तो अगर ये सेम है एट ऑल t belongs to R, then they are equal in distribution. Now remark, x and y can be quite different even if x is same equal in distribution with y. Now what does this mean? यहाँ तक तो हमें लगा था कि अच्छा अगर वो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, सब कुछ तो इक्वल है तो सेम ही होने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि उनके डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सेम हो फिर भी वो दोनों बहुत अलग हो। मतलब अगर सेम सैंपल स्पेस पे अगर हम x और y को डिफाइन कर रहे हैं तो वो दोनों बहुत अलग अलग वैल्यूज ले हो सकता है कि वो सैंपल स्पेस के हर एक पॉइंट्स के लिए बहुत अलग अलग वैल्यूज ले, लेकिन फिर भी उनके डिस्ट्रीब्यूशन सेम आए। कैसे हो सकता है? लेट्स सी सम एग्जांपल। एक्सपेरिमेंट इज टू टॉस 3 फेयर कॉइन्स इंडिपेंडेंटली। तो 3 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं, तो हमारे पास आउटकम किस टाइप के आएंगे, HHH
एच एच टी एच टी एच टी एच टी सॉरी टी एच एच and so on, HTT, THT, TTH, TTT। ठीक है, ये सारे हमारे पास आउटकम है। ये हमारा हो गया एक्स सैंपल स्पेस। एक्स हमने डिफाइन किया नंबर ऑफ हेड्स एंड वाई डिफाइन किया नंबर ऑफ टेल्स। तो टोटल 3 कॉइन टॉस हुए हैं। तो अगर एक्स नंबर ऑफ हेड्स है तो वाई क्या हो जाएगा, 3 माइनस ऑफ एक्स, सॉरी y इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ एक्स, क्योंकि टोटल 3 आउटकम्स है, उनमें से अगर नंबर ऑफ हेड्स x है तो नंबर ऑफ टेल्स 3 माइनस। तो x और y इक्वल नहीं है, बट देन द प्रोबेबिलिटी एट ईच पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी इज सेम फॉर x एंड y। So if let's say you are saying you want to compute probability of x equal to 2, which is same as px2। मैं ये बार बार इसलिए लिखती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे कि p और px में क्या डिफरेंस है। ये चीज कभी मत भूलना, इवन आगे एमएससी में भी ये चीज बहुत काम आएगी। p और px अलग अलग होते हैं, दोनों ही प्रोबेबिलिटी मेजर्स है, बट दोनों जिस पे डिफाइन है वो और जिस सैंपल स्पेस पे डिफाइन है वो अलग अलग सैंपल स्पेस है। px जो है रियल पे डिफाइन है और p जो है वो ओरिजिनल सैंपल स्पेस पे डिफाइन है। ठीक है, तो px ऑफ 2 क्या हो जाएगा, मतलब 2 हेड्स आने चाहिए, तो 3 में से 2 प्लेसेस चूज करो, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 पावर 2 एंड थर्ड है टेल आएगा तो 1/2। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि p ऑफ y इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, py ऑफ 2 विच विल बी व्हाट, 2 टेल आना है, ये तो सेम ही हो गया, 3 में से 2 पोजीशन चूज करो, 1/2 हो गया टेल आने की प्रोबेबिलिटी, सो स्क्वायर एंड 1/2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो इसलिए हर एक पॉइंट पे, हर एक सैंपल पॉइंट पे x के पर्टिकुलर वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी सेम एज y के दैट पर्टिकुलर वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी, बट x एंड y आर नॉट सेम। एंड दिस इम्प्लाइज दैट x एंड y का डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम है। ये दिस यू कैन चेक, मतलब अगर हर एक डिस्क्रीट केस में अगर हर एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी सेम है तो उनके CDFs भी सेम होंगे, तो इसलिए वो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, बट x और y कभी भी सेम नहीं हो सकते, राइट। नाउ कंटिन्यूअस का एग्जांपल कि x एंड y जो है, x जो है रैंडमली चूजन रियल नंबर है फ्रॉम 0 to 1, और इन दिस केस टू मेक इट समथिंग लाइक दिस कि आपको सैंपल स्पेस चाहिए, देन यू आर डिफाइनिंग x, देन यू आर डिफाइनिंग y, तो मैं कहूंगी कि इसको ले लेते हैं s जो है हमारा सैंपल स्पेस। तो अगर हमारा एक्सपेरिमेंट है कि रियल नंबर चूज करो फ्रॉम 0 to 1, तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 0 1, क्योंकि वही पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है। अब x को तो डिफाइन करो कि जो वैल्यू आई है वही, मतलब x ऑफ स्मॉल एस इज स्मॉल एस इटसेल्फ। ठीक है, अगर जो वैल्यू पिक की है हमने अगर वो 0.5 है तो x भी 0.5 के इक्वल है, और y को डिफाइन करो 1 माइनस एक्स, मतलब जो वैल्यू हम, जो नॉट 1 माइनस एक्स बट राइट इट लाइक दिस, y स्मॉल एक्स इज 1 माइनस स्मॉल एस। ठीक है, तो y और x इक्वल नहीं है, मतलब y और x का सम 1 के इक्वल है, तो y और x तो इक्वल नहीं है, बट नाउ दिस इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू टू चेक कि इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। एक हिंट दे सकती हूँ क्यों सेम होगा, क्योंकि 1 माइनस एस, मतलब अगर y के लिए मैं बोलूँ कि इट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू सम t, देन व्हाट इट मीन्स इज s has to be greater than 1 minus t, right? And now you can compute the probability of this thing. This will be 1 minus probability of s less than 1 minus t, which is 1 minus 1 minus t,
एंड इट विल अगेन बी टी, एंड यहाँ पे ऑलरेडी टी है प्रॉबिलिटी। तो मतलब जस्ट एक रफ कैलकुलेशन मैंने दे दी है कि कैसे निकालना है, बट आई एम लिविंग इट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू टू डू। ठीक है, तो ये दोनों भी सेम नहीं है बट इनके डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। ठीक है, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज देखते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी। आई एम नॉट गिविंग प्रूफ ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, ये जस्ट याद रखने के लिए है। प्रूफ इम्पॉर्टेंट नहीं है उनका उतना, और उतना डिफिकल्ट प्रूफ भी नहीं है, इजी प्रूफ है। लेट x be a random variable with CDF this, then f of x small a, अगर स्मॉल a पे डिफाइन करें तो वो वैल्यू स्मॉल b से एफ एक्स स्मॉल b से छोटी होगी फॉर ऑल a लेस देन b। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो फंक्शन विल बी समथिंग इन, मतलब इंक्रीज नहीं होगा तो कंटिन्यूअस होगा, सॉरी एटलीस्ट डिक्रीज नहीं होगा, इट विल बी नॉन डिक्रीजिंग, इधर इंक्रीजिंग और कांस्टेंट। ठीक है, और सेकंड है कि माइनस इन्फिनिटी पे एफ एक्स जो है वैल्यू 0 लेता है, प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू एफ एक्स जो है वो 1 लेता है, एक्स एट ऑल प्लेसेस, एंड राइट कंटिन्यूअस है, जो हमने पहले ही देखा था कि लिमिट अगर x इज टेंडिंग टू x नॉट फ्रॉम राइट, दिस मीन्स कि x बड़ा है और डाउन जा रहा है x नॉट पे, तो f ऑफ स्मॉल x विल बी इक्वल टू f ऑफ x naught, means f is right continuous. Now there is some kind of some tools to find probabilities of some of intervals. तो अगर हमें px of small a b निकालना है तो ये हो जाएगा इक्वल किसके, अब ये किसके इक्वल है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, p of x minus infinity to b minus infinity to a, and that's why probability की properties की वजह से ये क्या हो जाएगा, minus infinity to b minus px minus infinity to a, and which is same as fxb, and this is fxb। तो अगर हमारे पास a से b की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बट मेक श्योर कि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे मैटर करता है क्योंकि यहाँ पे हम x एक रैंडम वेरिएबल है बस यही बोल रहे हैं। अब वो कंटिन्यूस होता है तो यहाँ पे ये चीजें मैटर नहीं करती कि इक्वल कहाँ पे है, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू एनीवे 0 है प्रोबेबिलिटी। तो अगर लेकिन डिस्क्रीट होता है तो फिर ये मैटर करता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट एज इट इज आना चाहिए, इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, जस्ट अ रैंडम वेरिएबल, वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक्स जो है स्मॉल एक्स वैल्यू लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एक्स ना, हमें पता है कि दिस कैन बी रिटन एज समथिंग लाइक दिस, माइनस एक्स एन, let me write it like this instead of writing like px minus infinity to x intersection limit and tending to infinity probability x minus infinity to x minus 1 by n close complement, oh sorry, ट्रू। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है स्मॉल एक्स को, मैंने क्या किया बेसिकली माइनस इन्फिनिटी से एक्स तक का एक इंटरवल लिया और उसमें से मैं क्या माइनस कर रही हूँ, x माइनस 1 बाय एन, मतलब यहाँ तक वाला, इफ दिस इज x माइनस 1 बाय एन, यहाँ तक वाला माइनस कर दे रही, तो बचा क्या ये पार्ट। अब ये जैसे जैसे n इंक्रीज होता जाएगा ना, वैसे वैसे ये एकदम इसको अप्रोच करेगा, तो दिस इज x माइनस 1 बाय एन अगेन,
तो इस पार्ट को माइनस कर दिया एंड सो ऑन, एकदम इस पार्ट को माइनस कर दिया, तो बचा क्या, सिर्फ x की वैल्यू बची, क्योंकि ये x माइनस वन बाय एन जो है वो x को कभी अटेन नहीं कर पाएगा, इट विल ऑलवेज बी समथिंग लेस देन x। एन अगर 1 लाख भी हो गया तो x माइनस 0.00000 ऐसे रहेगा, राइट, x पे कभी नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, मतलब इसको माइनस कर दिया, उसका मतलब क्या है, इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में इंटरसेक्शन ले लिया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट है इधर वाला पार्ट, बट x तो यहाँ तक ही है, तो इंटरसेक्शन तो सिर्फ यही बचेगा, राइट। तो x इक्वल टू दिस। नाउ वी नो कि अगर अब ये जो है ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है सेट्स की, तो इसलिए ये लिमिट आ जाएगी बाहर, तो लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी px माइनस इनफिनिटी टू x माइनस p ऑफ माइनस इनफिनिटी टू x माइनस 1/n, राइट। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट लगेगी नहीं क्योंकि n है ही नहीं, माइनस इनफिनिटी टू x माइनस लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी probability x माइनस इनफिनिटी टू x माइनस 1/n क्लोज ब्रैकेट। अब ये तो हो गया हमारे पास कैपिटल x स्मॉल x माइनस, ये क्या हो गया, अब ये हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं x को, बेसिकली ये तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, इसको हम लिख सकते हैं f(x) x माइनस 1/n, राइट। अब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ये वो तो नहीं है, कंटिन्यूअस तो नहीं है, fx जो है लेफ्ट कंटिन्यूटी होल्ड नहीं करता है, तो दिस विल नेवर बी इक्वल टू fx, राइट। तो इसको एक नोटेशन दिया है fx माइनस, दिस इज fx माइनस, x माइनस मतलब x से जस्ट छोटी वैल्यू, बहुत छोटी, मतलब x और उसके बीच का डिफरेंस इज नेग्लिजिबल, तो उस पॉइंट पे fx जो है वो क्या वैल्यू लेता है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x इज fx माइनस fx स्मॉल x माइनस, whereas fx स्मॉल x माइनस इज लिमिट z इंक्रीजिंग टू x, तो ये z जो है वो x माइनस 1/n ले सकते हैं, क्योंकि x माइनस 1/n इज इंक्रीजिंग टू x एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इसलिए fx z इज, मतलब दोनों चीजें सेम ही हुई। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है तो इट्स ओके, यू कैन लीव इट, बट जस्ट मैंने एक बार एक इंट्यूशन देने के लिए कि ये किस तरीके से आ रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, x तक की प्रोबेबिलिटीज ले रहे हैं और उसमें से x माइनस, मतलब बहुत कम स्पेस छोड़ के उसके पहले वाले तक की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दे रहे हैं, तो बचेगा हमारे पास सिर्फ x की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये था आज का पूरा लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि CDF क्या होता है, CDF की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और हमने ये भी देखा इम्पोर्टेंट नोट की x और y हो सकता है दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो और डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल हो, बट फिर भी वो दोनों इक्वल ना हो एक दूसरे के, राइट। और किस तरीके से CDF को यूज करके हम प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू।